Ho ho ha ha ha. Good evening and welcome to Laughter Yoga India. I am Archana Rao, your laughter ambassador. And today we have something exciting here waiting for all of you. Manish is joining me for a beautiful conversation and he's going to talk on quite interesting thing. One is definitely talking about hypnotherapy, past life regression and all of these. Few of you have reached out to me after seeing the post with few questions which I have made note of it, which I'm going to ask Manish for sure, and you will get the answers. And meanwhile, let's start this entire live session with laughter. I always believe in doing something nice with laughter. So here we go for all of you. And if you have any questions during the conversation, don't hesitate to raise those questions to Manish so that he can answer for all of you. And if you're able to listen to me and if you're able to see me, you can just type in a hi message so that I'm sure that all the technology part and everything is taken care, whether it is voice or the video, all of it is taken care nicely. Hi Manish. Okay, let me get you here. I hope this time it beautiful. Now it is Hi. perfect. Half screen. How are you? I'm amazing. How are you? Super good. बारिश हो रही है मुंबई. How is it in Great. Ahmedabad? Your voice is cracking, madam. My voice is cracking. Okay, am I audible now? No. Okay. जोर से हंस के हंसूंगी तो शायद सुनाई देगा. Is it audible now? Uh, what is to be क्या हो done गया? now? Am I audible to you? You are sound and clear. Am You're I, amazing. is my voice Perfect sound. clear? Your voice is clear. Perfect. What happened? You're not able to hear me Uh, at all? no. I'm not able to hear. अच्छा लिप सिंग ही हो रहा है. Hi Priyanka. I hope you're doing good. Small little technical glitches and surprises that we get, but we don't worry. We still try once again. And you'll surprise. Yesterday we did a dry run and everything was working perfect. And today, is it audible now? Yeah, now it is perfect. First time gone, second time gone, third time it's That on. We are time. on. Oh, Yes. okay. Okay. So I was checking on you. How are things at Ahmedabad? Mm, as usual, I mean, still people are scared, and so slowly, those who are very enthused, they want to come out, and police are not supporting them to enjoy their life. And Yes. few few are so scared that they are not coming out. Correct. So how about starting this session with laughter since you have already experienced my Oh, always. मनीष आप मेरे को टक्कर दे सकते हो. You are my laughter buddy. You laugh so nicely. And for all of you who are watching us for the first time, Manish and I laughed together for one of the groups, and trust me, सब लोग बोलते हैं मेरा आवाज इतना ज्यादा है, but मेरे से भी मनीष का laughter is like full of life. तो थोड़ा और. मतलब आई राक्षसों से एक बात सीखने जा लायक है कि वो विदाउट एनी रीजन हंस सकते हैं. ऐसा अगर मुझे कोई I राक्षस got मिले that. ना तो I मैं उसको got यही that. पूछूंगा कि हाउ हाउ कैन यू मैनेज दिस. Absolutely. Fantastic. Thank you, Manish, first for accepting this discussion and to bring in little knowledge in people's life. So My let pleasure. us just start this up. सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल था कि when it comes to hypnotherapy, for me, if anybody talks about hypnotherapy, थोड़ा सा डर बैठता है कि यार ये मतलब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, ये hypnotherapy में कुछ कर देगा या कर देगी, and will it work? So Right. how do you
overcome this fear? Why is there this fear in people, and how do you support them and help them to overcome this fear? सबसे पहले that I wanted See, to know. see, the problem with India Hmm. is in India there is very popular term called Vashikaran. Okay. Vashikaran means to control someone's mind, and it's a tantric process. It is not a therapy, and I don't know Okay. whether it works or not. I don't know, but people are very much confused. Ki Vashikaran is hypnotherapy, Okay. but hypnotherapy is a therapy. It is a treatment, and it is not about controlling your mind. See, if I control your mind, then how will I be able to heal your mind? To control your mind, I need to empower your mind. I need to make your mind free. Then and then I'll be able to heal you. Otherwise, so controlling, healing and controlling, both therapy and control, both are 180-degree opposite things. So yes, people still are, and it's a mammoth task to convince people that this is not something about controlling your mind. This is not about manipulating your mind or something. और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि मैं ऐसे चुटकी बजाऊं और आप सो गए और No, that's the mindset people have. In fact, let me share why this question came. And once we put the poster on social media, there are quite good friends of mine who reached out and say, "यार hypnotherapy से तो डर लगता है." And then when I was discussing, I came to know few years back, if you remember, 10-12 साल या 15 साल पहले एक टेलीविजन में कुछ सीरीज आया था हाँ जिसमें हाँ हाँ पास्ट लाइफ हाँ और हाँ पिछले वहां जन्म का से लोगों ने हाँ पकड़ा कि ये तो डरावना सा है, मतलब they will make you sit and in fraction of seconds you are gone and something is happening. But I like what you said, कि it is not about vashikaran where somebody is trying to control. It is about supporting and allowing the person to go through those emotions and all. So how does this work? How does See, one hypnotherapy work? wonderful thing I would like to add in this. See, one Hmm. beautiful thing. Uh, what actually is the role of a hypnotherapist? Normally, we all are hypnotized. You might have heard that saying that every person on this planet keeps telling himself a story, and that story is hypnotic story, and we live the life according to the quality of that story, right? So we Correct. all are hypnotized, and a role of a hypnotherapist is to dehypnotize you. Okay. So rather, I am Okay. not hypnotizing you, I am dehypnotizing you. मैं आपको hypnotize अगर और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है ना, अगर यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ, अगर आपको लगता है लाइफ हेल है, लाइफ खराब है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दैट मीन्स आप hypnotized ही हो. The moment you are I out of like that. hypnosis, आपको पता चलेगा कि लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. Correct. ये hypnosis ही है जो हमें ये बताता है कि लाइफ खराब है. अदरवाइज लाइफ इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, बट अनहैप्पीनेस नहीं है. So does that mean that this self hypnosis is something more to do with our self talks, the negativity based on our past experiences? Is this what you mean to say? The self talk, the self chattering based on our past Yeah, experiences? it can be self talk. It can be what kind of messages we are receiving from other people, from social media or from movies or from newspaper or any other channel. So they are influencing our self talk, and we hypnotize ourselves based on that. अगर आप देखोगे तो people are so much biased. I mean, people, they are even ready to, so many friends have left the WhatsApp groups just on the basis of political biases. See the level of hypnosis. They are so much hypnotized. It's completely irrational. So every irrationality is getting hypnotized, and my role is to dehypnotize you. In fact, any hypnotherapist role is to dehypnotize you and take you close to the reality. And reality is bliss, is happiness. Nice. So how will, let's say, how do I know whether I need a therapy like hypnotherapy? ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या situation होता है which makes people to think that okay, now I need to look at hypnotherapy? When do you think a Okay, person okay, should think about hypnotherapy? okay. Now this is slightly technical. See, we have different layers of our existence. See, I'm not just a physical body, I'm something more than that, right? So there are different layers of my existence, out of which physical body is one is my mind. Above that, there are different layers, but we will not talk about them. Now, if
your body has some issue, then how that body will communicate it to you that it needs your help? It will Physical. create a pain signal. It will create a pain signal. Correct. पेन आया मतलब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी को मेरे अटेंशन की जरूरत है. Correct. Right? Yes. So then I'll go there and I'll do something about that pain. The same way, if your mind also wants your urgent attention, then it also creates a pain signal. अब फिजिकल पेन और मेंटल पेन में फर्क है. मेंटल पेन कौन से फॉर्म में आएगा? तो इट कैन बी बैड इमोशंस, like loneliness. You are not able to handle your loneliness, or stress, depression, fear, phobia, anger, guilt. So ये जब अनकंट्रोलेबल हो जाता है तब ये समझ लो कि आपका माइंड आपको बुला रहा है. दैट्स इट. पेन मीन्स PAIN, पेन. पे अटेंशन इनवर्ड नाउ. So whenever you get I love that. Pay attention inward now. It's a That's pain. fantastic. So mind कैसे आपको पेन दे सकता है? तो माइंड के जो भी फंक्शंस है, एक तो इमोशन, वो आपको डिस्कम्फर्टिंग इमोशंस देता रहेगा बार बार. दूसरा आपके रिएक्शंस, मतलब यू विल स्टार्ट रिएक्टिंग वियर्ड, है कि नहीं? आपकी स्लीपिंग पैटर्न में चेंज हो सकता है. आपको आपका ड्रीम्स जो है वो बहुत वियर्ड ड्रीम्स आने लग सकते हैं. आपकी क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट हो सकता है. थॉट्स बहुत सारे कंटिन्यूअस दिमाग में थॉट्स चल रहे. दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन दैट माइंड इज सर्विंग टू यू. Mind is serving this pain to you. Why? So that you can pay attention to mind and do something about that. So if you are experiencing this kind of pains, then you should go to a hypnotherapist. Second option, if you find a lot of if you are coming across a lot of cosmic signs, मतलब मैं जहां भी जाता हूँ मुझे डेजा वू हो रहा है, या मैं जहां भी जाता हूँ मुझे एक नंबर पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली दिखता रहता है. So all these are a cosmic signs that cosmos wants you to look inside you. और जहां तक मन की बात है, मन के अंदर देखने के लिए हिप्नोथेरेपी एंड मेडिटेशन, ये दो से बढ़कर मेरे ख्याल में दूसरी कोई चीज नहीं है. सो एंड मेडिटेशन एक साधना है, वो थेरेपी नहीं है. वो साधना है, वो लंबे समय तक. इट इज लाइक गोइंग टू द जिम एंड गोइंग टू हिप्नोथेरेपी इज लाइक गोइंग. हाँ, वो आपको साधना करना पड़ेगा लंबे समय तक. एंड गोइंग टू अ थेरेपिस्ट इज लाइक यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर और समथिंग फॉर अ ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग, है कि नहीं? So if you are receiving cosmic signal, either if you have that much patience and everything, you can go to meditation, or you can go to some hypnotherapist. So this is the second option. And third is, आपको अंदर से कुछ ऐसा आता है कि मुझे लाइफ के बारे में जानना है. Who am I and why am I existing on this planet? ऐसे existential spiritual questions आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, और ऐसे होते हैं, वो बहुत रेयर लोगों को होते हैं पर होते हैं. देन ऑल्सो दैट मीन्स आपको मन के लेयर को पार करके आगे जाना है. तो मन के लेयर को पार करना है तो हिप्नोथेरेपी और मेडिटेशन, दैट फ्रॉम माय ओपिनियन those are the best two options. So fantastic. I like the fact you're saying that when somebody is undergoing major physical challenges, it is time to look inward. And while they may not be in a position to look inward, that is the time they would require a therapist who is into hypnotherapy, who can go deep within and find a solution. Yes. Right? And a real therapist will actually teach you how to deal with yourself. So you will be independent. मतलब मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा होगा जिसने मेरे पास से 8-10 से ज्यादा सेशन लिए हो थेरेपी के. वो ऐसे ही आके मिलेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. 8-10 सेशन से ज्यादा कभी किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दे बिकम सो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन. और फिर एडवांस लेवल के लिए उनको कुछ जानना हो, कुछ सीखना हो, कुछ डिस्कस करना हो, वो अलग चीज है. सो आप जाइए एंड यू विल फील सो मच फ्रीडम. और एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी को गवर्न कर सकता है. मतलब विल क्रिएट. माइंड इज अ गवर्नर ऑफ अ फिजिकल बॉडी. करेक्ट. सो एक अस्वस्थ मन जो होता है वो कभी स्वस्थ बॉडी नहीं रहने देगा. और एक स्वस्थ मन है वो अस्वस्थ बॉडी को भी स्वस्थ बना देगा.
Nice. So how long you've been doing this, and what inspired you to get into hypnotherapy and your past life regression and all of these? See, basically, I never thought, I never dreamt to be a therapist. और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि मैं कैसे इसमें आ गया. आई वॉज इन टू अ टेक्निकल फील्ड, आई वॉज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वॉज इंजीनियर, एंड थोड़ा सा मेरा मिलिट्री का भी बैकग्राउंड रहा. बट सी, थेरेपी जो है ना, इट इज अ कॉस्मिक इवेंट, और थेरेपिस्ट बनना उससे भी बड़ी कॉस्मिक इवेंट है. एंड ऐसा नहीं होता कि आपने कोई कोर्सेज कर लिया तो आप हिप्नोथेरेपिस्ट बन गए. ऐसा मतलब थेरेपी में कैसा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड के साथ रेजोनेट करता है, एंड देन वो इंट्यूशंस आते हैं. एक्चुअल हीलिंग कहाँ करना है वो क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को ही पता है. वो थेरेपिस्ट को कुछ भी नहीं पता है. थेरेपिस्ट आपकी लाइफ के बारे में कितना जान सकता है, जान के. मैं अगर आपके साथ 10 घंटे, आप मेरे पास 8, 10, 12, 15 घंटे का सेशन लेंगे, उसमें मैं कितना जान सकता हूँ. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है, एंड मुझे उस तरफ फिर थेरेपी करनी होती है. तो इट इज मोर लाइक एन आर्ट जो आपके साथ इन जो पैदाइशी होता है. तो मैं बचपन से ये कर रहा था, मुझे पता नहीं था जब तक मैंने फॉर्मली वो सीखना शुरू नहीं किया. फॉर्मली सीखना शुरू किया तब मुझे लगा ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मेरे अंदर पहले से है. एंड सो यूनिवर्स हैज असाइंड मी दिस जॉब रादर देन, मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा, आई स्वेयर आई नेवर थॉट टू बी अ हिप्नोथेरेपिस्ट, और ये हो गया. वेरी नाइस, वेरी बट नाइस. स्टिल प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ तो 2-3 साल से कर रहा हूँ. उससे पहले 5-7 साल, 8-1 साल से मैं अनप्रोफेशनली इसको करता था. काफी सारे लोगों का ट्रीटमेंट है. So you have प्रोफेशनली your मैंने studio मेरा in सेंटर बनाया Ahmedabad, 3-4. right? You have a हाँ, nice studio in Ahmedabad. या Hmm. स्वदर्शना I'm yet to स्वदर्शना visit your हिप्नो. new studio. I just came to know that you have shifted and you have a nice place now in Ahmedabad. Swadarshana, या right? Swadarshana. So या all those या viewers who are watching, if you get an opportunity to visit Ahmedabad, make sure that you are visiting this wonderful man. I have a reason why I am saying this, which I will share in a while. With so much of conviction, why am I sharing this? I will tell in a while. Manish ओके. knows. Manish, क्यों थोड़ा सा शेयर करते हैं. So इतने सारे केसेस आपने इतने सालों में कि you would have met so many people with so many या issues and challenges. Would you like to share any major breakthroughs with few people, that 1 or 2 session, and it kind of just help them just to understand कि कैसे कैसे problems लेके आते हैं लोग और कैसे उसको heal किया जाता है. मतलब केसेस थाउजेंड्स ऑफ केसेस है, और हर केस अपने आप में एक नई कहानी है. Yes. But just to give us a little माय gist. एक मैं थोड़ा सा वियर्ड केस बताता हूँ. तो इसमें कैसा था कि देयर वाज अ गर्ल जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और 5-6 बार उसका एंगेजमेंट तक पहुंचा, कभी कभी कार्ड्स तक बट गए, और फिर समथिंग यूज्ड टू हैपन, एंड फिर उसकी शादी टूट जाती. तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में तो यही आता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे, तो जाके देखते हैं किसी के पास. तो वो बड़े मतलब फोन करके मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है. अब जैसे उनको पता है कि मेरा पास्ट लाइफ का ही प्रॉब्लम है ऐसा. सो बाकी इस जन्म में तो मैं दूध का दूल्हा हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऐसे आ जाइए. फिर कुछ सेशन के बाद हम पास्ट लाइफ में गए. तो उनको ट्रांस में ले जाके पास्ट लाइफ में गए, तो पिछले ही जन्म में उनका एक प्रेमी था, एंड उन्होंने एक दूसरे को ऐसा कुछ बहुत ही इंटेंस मोमेंट में बोल दिया था कि मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा. ऐसा वो प्रेमी बोल दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आई विल बी देयर विथ यू फॉर एवर. एंड फिर इवेंचुअली दोनों ने आत्महत्या करके मर गए थे, ऐसा कुछ था उसमें. तो वो ये बहन भी मर गई, वो भाई भी मर गया,
और वो भाई मरने के बाद दूसरी बॉडी में नहीं गए, ये बहन घर चली गई दूसरी बॉडी में। एंड वो जो थी, उनकी एनर्जी जो थी इनके अंदर थी, वो अनकॉन्शियसली किसी को शादी होने नहीं दे। It was not allowing her to move ahead. या सो दैट बिलीव कि मैं किसी और की नहीं हो सकती, वो किसी और की उनको होने नहीं देती थी। It sounds crazy, really. कितना डीप डीप लेवल पे बातें होती है। हमेशा लोग ये बोलते हैं कि मुझे इससे कभी जुदा नहीं होना है, मुझे इससे अलग नहीं होना है, ये हमें हमेशा साथ में रहना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सी लाइफ की ब्यूटी उसी में है कि हमारी लाइफ में लोग आते हैं, कुछ प्रकार के हमें एक्सपीरियंसेस देते हैं और चले जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अगर कोई आपकी लाइफ में आया और कभी नहीं जाएगा ना, तो उससे इट इज अ बिग हेडेक, वो कैंसर बन जाता है। सो अभी कल ही मेरी एक लड़की से ऐसी बात हो रही थी कि कोई आता है मेरी लाइफ में और फिर छोड़ के चला जाता है, फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आइसक्रीम मेरे पास आई, मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने एंजॉय की, और आइसक्रीम खत्म हुआ, मैं रोने लग गई कि क्यों खत्म हो गई। पर But रादर that's देन the आई शुड case बी with थैंक। many. I've heard this is the case with many recent generation. If you look at it, when you talk about love, when you talk about relationship, it's all very quick. मतलब अभी हुआ 2-3 महीने में, and then like it's over. Now what next? Then again they are coming. So this pattern is building up recently, and I have personally come up with few things ये like this. उसकी वजह कुछ और है। हाँ. ये लोग क्या करते हैं कि वो लव होता है नहीं होता है, दैट इज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम, आप जो कह रहे हो उससे मैं कंप्लीटली अपोजिट चीज कह रहा हूँ। लोग हमारी लाइफ में आए, हमको किसी तरह का एक्सपीरियंस दिया और वो चले जाएंगे, तो लेट देम गो। बी थैंकफुल कि आपने हमको ये एक्सपीरियंस दिया। उनको ये कंपल्शन मत करो कि तुमको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम तो बोल रही थी कि मैं समय तब साथ में रहेंगे, वादा किया था, ये किया था। बट ह्यूमन माइंड है, वो चेंज होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, अभी भी आप ये जो हाथ देख रहे हो, 3 महीने बाद ये पूरे सेल्स बदल गए होंगे, वो ये हाथ नहीं होगा। ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता है, वही उसी में उसकी ब्यूटी है। सो लाइफ को स्टेक बनाओगे तो वो सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आएगी, फिर आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाके पता नहीं कौन से जन्म में वो कचरा निकलवाना पड़ेगा। सो But how do you differentiate whether they want a hypnotherapy or whether they want a past life regression? When somebody comes to you with some challenge, कैसे पता चलता है कि इसको hypnotherapy की जरूरत है या past life की जरूरत है? एज आई सेड कि एक्चुअली तो क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड है, वही जानता है कि कौन से थेरेपिस्ट के पास जाना है, कब थेरेपी लेनी है, कब हीलिंग है, कौन से पार्ट में हीलिंग करवाना है, क्यों लाइफ मेरी अगर पास्ट लाइफ देखो तो लाखों का पास्ट लाइफ होंगी और उसमें बहुत कुछ होगा, पर कौन सी पास्ट लाइफ को हील करना है वो क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को ही पता है। सो जब मेरा काम है उसको ट्रांस में ले जाना, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो इंट्यूशंस देना शुरू करेगा कि आपको यहाँ जाना है। सो मैं जितना जजमेंट फ्री होऊंगा ना, उतनी ज्यादा अच्छे से थेरेपी होगी। इसीलिए अगर मैं मेरी वाइफ की थेरेपी करने बैठूं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे जजमेंट फ्री होना पड़ेगा। सो मैं मेरे क्लोज फ्रेंड्स की भी थेरेपी मैं नहीं लेता बने तब तक। Okay, that's क्योंकि lot of मेरा judgments and जजमेंट, all those attached अगर to it. अगर आपको देखा मैंने 2 बार बात करके मैंने सोच लिया कि नहीं आपका तो पास्ट लाइफ का इशू होगा, तो इट बिकम्स माय जजमेंट व्हिच विल लिमिट माय कैनवास। सो रादर देन इट इज लाइक अ फ्लो, जो जो सिग्नल मिलते हैं उसकी तरफ मैं रिसेप्टिव रहता हूँ। और तो लोग फोन करके बोलते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ में जाना है, तो 85% प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसी लाइफ से होते हैं। I हार्डली thought so. 15% प्रॉब्लम, हार्डली 15% ऐसे होंगे कि जो बाहर के। एक औरत मेरे पास आती थी, काफी दूर से ड्राइव करके आती, शाम को आती, एंड उनको ये प्रॉब्लम था कि उनकी रिलेशनशिप्स टूट जाती थी। तो हम उनको ट्रांसफर, उनको भी यही कि पास्ट लाइफ का ही प्रॉब्लम होगा। तो हम उनको ट्रांसफर ले गए, बचपन में गए, तो बचपन में शी वॉज वॉचिंग अ साईं बाबा मूवी, और साईं बाबा मर गए, वो 3.5 साल की होगी तब। साईं बाबा मर गए एंड देन वो लड़की खड़ी हो गई बाथरूम में गई, 45 मिनट्स तक रोती रही। एंड एट दैट टाइम हर माइंड टुक वन डिसीजन कि साईं बाबा मर गए, मतलब अब दुनिया में कोई अच्छा आदमी बचा ही नहीं जिस पे रिलाई कर सके।
दुनिया का क्या होता था। सो वो बिलीफ जो थी, वो जब भी वो किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में आती, वो ट्रिगर हो जाती और उनमें ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाते, जिसकी वजह से इवेंचुअली वो सामने से ही उसको कट ऑफ कर देती। तो हमें लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई ट्रॉमा नहीं है, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं होता। अब एक लेडी मेरे पास ऐसी भी आई थी कि जिन्होंने ये बताया कि बचपन में मेरे मेरे ऊपर चाइल्ड अब्यूज वगैरह होता था। तो बट एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही निकला। उसका कोई लेना देना ही नहीं था उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम से, बिकॉज वो चाइल्ड ओवरकम हो चुका था उस प्रॉब्लम से, उसने उसमें से कुछ भी फियर बेस्ड लर्निंग नहीं डिराइव की। So does that mean कि ये लोग जब आते हैं आपके पास, though they come and ask कि मुझे past life चाहिए, but you choose, you say hang in, let us know, you allow them to choose. यस, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए पास्ट लाइफ करवाते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जो बिना कारण आके जानना चाहते कि मैं पास्ट बिना लाइफ में कारण, क्या सर मुझे ऐसे ही पास्ट लाइफ में मैं क्या था मुझे जानना है। मैं कहता हूँ यू नीड टू कन्विंस मी कि दिस इज योर पेन, और अगर मैं कन्विंस हूँ तभी मैं आपकी थेरेपी करूंगा, अदरवाइज दिस इज नॉट मतलब माय आई हैव टेकन एन ओथ कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज माय आर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो थेरेपिस्ट है वो बहुत ऑथेंटिक है? लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चंस। ओवरऑल सभी थेरेपी में ये थोड़ा सा चैलेंज होता है। आई एम इनटू रेकी, आई एम इनटू सो मेनी अदर स्टफ, so people keep having that question and doubt. So if somebody wants to know that okay, I want to do a hypnotherapy or past life, how do you think they will be able to convince कि यहाँ पे सेफ है जाना? एक तो उसके पास सर्टिफिकेशंस उसने कॉलेजेस वगैरह में से लिए है, वो तो डेफिनेटली, बट दैट इज नॉट इनफ। Okay. या इट इज नेसेसरी बट इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट सफिशिएंट। Okay. आप उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, एंड हाउ कंफर्टेबल यू फील विद, उसकी आवाज आपके दिल में कहाँ तक उतरती, उसकी प्रेजेंस आपको कैसा फील करवाती। तो मतलब मैं ऐसे साधुओं से भी मिला हुआ हूँ कि जिनके साथ आप जाके बैठिए से वो मुंह नहीं खोलेंगे, आप मुंह नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं होगी, एंड आपको लगेगा जैसे आपके अंदर से कुछ चला गया। So, वो मतलब एक There is an हिप्नोथेरेपिस्ट का energy. काम There है। is an energy. I आई can थिंक इट इज बियॉन्ड दैट। माइंड के लेयर के ऊपर के लेयर के डॉक्टर से वो, मैं माइंड के लेयर का डॉक्टर, वो उसके ऊपर के लेयर के डॉक्टर। अब उनका तो कोई भी And सर्टिफिकेशन नहीं है, बट आप बैठिए, आपको लगेगा चाहे मेरा पूरा वॉल सर्टिफिकेट से भरा पड़ा है, पर अगर मेरे साथ बैठ के आपको वो कंफर्ट नहीं आ रहा connect. है कि नहीं, बस कनेक्ट नहीं फील हो रहा है, तो वो फिर वो थेरेपिस्ट आपके काम का नहीं है। Absolutely. I think it is also about the comfort, convenience and trust जो built होता है ना जब किसी को जाकर मिलते ट्रस्ट होना हैं, बहुत बैठते. Most important is the trust, because you are opening up to so many areas of your life to somebody whom you don't know and just you met for the first time उनसे. तो normally अगर hypnotherapy के issues लेके अगर if somebody is coming with a problem, does it get resolved in just one session, or is it like they go for multiple sessions? How much time does this take for an issue to be resolved through the therapy? See, if I have that opportunity to go step by step, तो 5 to 6 सेशंस। And how अगर many मेरे पास hours नहीं each है, session? इस सेशन इट डिपेंड्स है, 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक भी चल सकता है। एंड एट टाइम्स मुझे लोग ट्रेन में मिल जाते हैं, मुझे लोग एयरपोर्ट्स पे मिल जाते हैं, मैं कहीं हॉलीडेज पे गया हूँ, पता चलना चाहिए बस। फिर लाइफ तो फिर दोज पीपल, एज आई सेड कि थेरेपी इज अ कॉस्मिक, तो मेरे पास आया है मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे मेरे से लेकर जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी है जो मतलब मैंने हॉलीडेज पे एक एक सेशंस में भी उनके 10-10 15-15 साल पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। So it is, I mean, nothing is sure in that, and that is the biggest thing about any therapy which deals with non-physicality. टाइम जो है वो एक फिजिकल डायमेंशन का और नॉन फिजिकल डायमेंशन का टाइम जो है वो अलग लेवल का होता है। So इन लोगों को suppose you do one session, एक बार आया एक सेशन किया, उसके बाद में एक हफ्ते या 10 दिन के बाद the next sitting, तो उस दौरान भी कुछ शिफ्ट चेंज या कुछ ऐसा
I'm using the technical word assignment, but do you ask them to do something before yes, getting yes, into the yes. next session? Maybe यहाँ the हर cooking हर process, हर maybe लेयर, eating habit or something. हाँ, I don't हर know. हर लेयर पे उनको अलग एक्सरसाइज दी जाएगी कि अपनी पहला सेशन हुआ है, ये एक्सरसाइज कीजिए, फिर दूसरे सेशन में से ये निकल के आया तो आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एंड दैट एक्सरसाइज कैन बी, मैं या आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज दूं, या कोई मेडिटेशन दूं, या कोई क्रिया मैं आपके लिए बना के दूं, या तो मैं आपको बोलूं कि आप आपके पुराने दोस्तों से बात करिए, इसे लेके आप यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ गिल्ट। तो अगर आप कोई आपको विजिबल गिल्ट दिख रही है तो उस आदमी से जाके मिलिए, अपोलोजाइज करिए, या तो मंदिरों में जाइए, इसे लेके फिजिकल एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए। इट डिपेंड्स कि क्या बाहर आता है। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आए दो एक एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेरे साथ बिताया और फिर वापस जाके पूरी आपने अपनी नॉर्मल लाइफ जी। ऐसा नहीं है, आपको थेरेपी के अंदर रहने के लिए कुछ 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 करते रहना पड़ेगा। एंड और ये फिर एक जर्नी बन जाती है, इट बिकम्स अ Hmm. पार्ट ऑफ इट। Hmm. 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 Fantastic. I think great information. Where do you want to take this to the next level? Right now, I'm sure you do. Are you doing online sessions as well, or this यस, requires यस। physical presence only? नहीं, नहीं, ऑनलाइन, वी आर डूइंग ऑनलाइन सेशंस। Okay. Okay. So, how much is it effective for you online? Because I'm sure you would have tried this now after the pandemic of मैनी, online and all. हाँ, So, आफ्टर ड्यूरिंग लॉकडाउन वी डिड ऑल द सेशंस ऑनलाइन ओनली। acha. सी देयर इज समथिंग कॉल्ड सजेस्टिबिलिटी। Okay. Suggestibility means how effective you are, your relationship with your therapist is. So Okay. in first session I check for the suggestibility. So अगर Okay. ऑनलाइन में आपका सजेस्टिबिलिटी अच्छा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन फोन पे भी हिप्नोटाइज करके थेरेपी कर सकते हैं अगर उसकी आपकी सजेस्टिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो। Hmm. 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 अगर आपकी Hmm. Hmm. सजेस्टिबिलिटी से मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस के लिए भी अच्छी है तो आपको ऑफलाइन सेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग Okay. चीजें पढ़ लो तो भी हो जाएगा। तो इट इज अबाउट मी कि मैं कितना सजेस्टेबल हूँ, Hmm. उतनी मेरे पे थेरेपी काम करेगी। Hmm. 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 So I have this very funny thing which has been in my mind. अभी बात करते करते एकदम से याद आया. I've seen something on television where they talk about mass hypnotization. मतलब अचानक ही कुछ हो रहा है, पूरा ग्रुप मिलके कुछ कर रहा है. ऐसा सब कुछ भी होता है क्या? That somebody is trying to control the entire mass. ये what is that? सी, ये कंट्रोल कर, जहाँ कंट्रोल की बात आती है वहाँ हिप्नोथेरेपी खत्म हो जाती है। फिर वो वशीकरण वाली बात, कंट्रोल का हिंदी होता है वश। सो वो वशीकरण की बात हो गई। वो वशीकरण कैसे काम करता है, क्या काम करता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट जहां तक Okay. मुझे पता है वशीकरण से किसी का हीलिंग नहीं हो सकता। हील करने के लिए आप आपको हीलिंग की जरूरत ही तब पड़ती है जब आप किसी चीज के वश में हो। तो मेरा काम है Okay. आपको किसी के वश में से निकालना, तभी Okay. आपका हीलिंग। So what you are saying is there is nothing called as mass hypnotizing, that you आई have like आई एम 50 नॉट अ people. राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Okay, okay. But are you aware that something like this can be done in a hypnotherapy? Let's say four people are sitting together. हिप्नोथेरेपी में कंट्रोल करने की बात हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता. Okay, okay. Let me get this right, and for all the viewers who are going to watch this at a later stage also, that a lot of us feel that when it is hypnotherapy means it's about control. The therapist is going to control our mind, control our thoughts, and dig in for more information. But what Manish just shared so beautifully, it's not about control, it's about release. And that's where the difference, when people see that 100 people or 200 people are getting controlled by hypnotherapy, that is not hypnotherapy. So going further, hypnotherapy का negative और डरने की जरूरत नहीं है basically. Nice, nice, nice. So are you now you are focused more on India, but are you also taking this globally? Anything happening? Because these kind of therapies have really been picked up in the past few years. People have started still reaching out for an alternate therapy, and this is also very strong one among them where people are reaching. So are you doing something internationally as well? Yeah, I already have international clients. Hmm, 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 And when NRIs are coming here, because in European countries or in USA, hypnotherapy is very costly. hmm. तो वो वहां से यहाँ के होटल में रह के थेरेपी लेके जाते हैं, वो उनके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और इंडिया Hmm. घूमना भी चाहते हैं।
So And I जब think the trust NRI factor is also there with the therapist in India. At least हाँ I have felt हाँ that. हाँ they yes they yes yes believe that the genuineness is there, the authenticity is there. I've seen quite few people saying that अच्छा इंडिया से है, whether it is yoga and few other stuff, Ayurveda and all, people हाँ still trust कि हाँ यहाँ पे authenticity और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अच्छी चीजें ये हों। yes yes Beautiful. yes that is Beautiful. also So do you do some sort of courses for students or anything where self hypnotherapy or something that can help even students or somebody who wants to you yes know I have different training programs hmm, फॉर स्टूडेंट्स आर्ट ऑफ स्कोरिंग हाई इन एग्जाम जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट से लेके सेल्फ हिप्नोसिस एनर्जी मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट कैसे कम समय में ज़्यादा आराम से सो जाना है अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्शन से अलग रखना है मेमोरी कैसे बढ़ानी है कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए से लेके एवरी माइन्यूट थिंग मतलब इट्स अमेजिंग इट्स माय फेवरेट प्रोग्राम वो 2 दिन का पूरा 8-8 10-10 घंटे चलता है वो 2 दिन बट वो पूरा लर्निंग पैटर्न चेंज हो जाता है that's फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जिसको मैं अप्लाइड हिप्नोसिस कहता हूँ जैसे hmm. कि आई वांट टू अप्लाई द फंडाज ऑफ हिप्नोसिस इन माय करियर और इन माय ऑफिस सो मैं ऑफिस अब मैं मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाने में अगर मुझे ठीक नहीं लगता दैट मीन्स आई एम डूइंग वेरी बैड टू माय लाइफ ठीक है सो आई एम समवेयर आई एम गोइंग टेरिबली रॉन्ग अगर मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आई एक्चुअली आई एम अ क्रिमिनल टुवर्ड्स माय लाइफ Yeah, तो you're ये forcing नहीं yourself to do something which you are या not व्हिच liking. यू शुड नॉट यस बिकॉज एक बहुत अच्छा थोड़ा सा मैं ऑफ द ट्रैक जाता हूँ वो पठान होते थे पता है जो पैसे मांगने आते थे कि हाँ उई मेरे पैसे दो करके ऐसा ना तो लाइफ जो है ना वो एक पठान की तरह एवरी सेकंड हमसे हैप्पीनेस मांगता है और अगर आप नहीं दिया ना तो लाइफ बोलता हुई मेरा हैप्पीनेस नहीं किधर है I love that. I love that. Going further, we should remember that अगली बार अगर खुश नहीं रह रहे हैं, ज्यादा रो रहे हैं, ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो पीछे से आवाज है, "ओए पठान किधर है? थोड़ा खुशी हो जा, थोड़ा हंस ले, थोड़ा फिर वो लाइफ लकड़ी लेके पीछे पड़ती है I और think वो you're जब तक one आप उसमें amazing therapist. The way you are talking, there is no way that I can get scared or worry कि ये hypnotherapy है या past life है. The way you are talking itself resonates so much to life at the most simplest form, which is amazing. Very nice. तो फिर वो पठान जो है ना वो लकड़ी मारता रहेगा जब तक आप कुछ करेंगे नहीं उसके बारे में सो वी हैव प्रोग्राम्स कि जिसमें आप काम करिए इंजॉय करिए परफॉर्म करिए ठीक है ना द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वो पठान का ईएमआई भरना है हैप्पीनेस का Correct. वो भरते रहिए सो Absolutely. जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए उन कस्टम मेड प्रोग्राम से जो पेरेंट्स है एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है हिप्नोटिक स्टोरी टेलिंग Wow. बच्चे को बोलो ये मत करो ये मत करो ये मत करो ऐसा नहीं होता वो सबकॉन्शियस माइंड को मत सुनाई नहीं देता उसको उल्टा ये ही सुनाई होता देता है है. कि ये करो तो एक स्टोरी बनाइए रात और बेड टाइम स्टोरी अब सोने से पहले का जो 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम होता है ना इट इज अ मैजिक टाइम वो एट द टाइम यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सबकॉन्शियस माइंड सो बच्चों को स्टोरी बताइए बतानी ही चाहिए हर बच्चे को आप जो भी देख रहा है उनको मैं बताऊं उनको पूछूं आपको ये याद होगा आपको बचपन में कौन स्टोरी सुनाता था आपको ये याद नहीं होगा कि आपने कौन कौन से ब्रांड के जूते पहने हैं इवन ये भी एक समय के बाद तो ये भी याद नहीं रहता कि कौन कौन से ब्रांड की गाड़ी कार्स मैंने खरीदी वो भी याद नहीं रहता बट यस वो याद रहेगा कि ये आदमी मुझे बचपन में स्टोरी सुनाता था उसको यूटिलाइज कीजिए बच्चों को स्टोरी कहिए एंड उससे आपका बॉन्ड तो अच्छा बढ़ेगा ही और स्टोरी इस तरीके से डिजाइन कीजिए वो कैसे डिजाइन करनी है उसके लिए आपको थोड़ा सा हिप्नोसिस का फंडा पता होना चाहिए थोड़ा सा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए थोड़ा सा आपकी लाइफ में आनंद होना चाहिए और आनंद होगा तो क्रिएटिविटी आएगी So do वो you also क्रिएटिविटी teach से hypnotherapy people who want to learn? Do you also teach आई them? एम फुल टाइम थेरेपिस्ट और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कोई जब
जब मेरे अंदर इतना नॉलेज आ जाए ना कि वो ऐसे फूट फूट के बाहर आने लगे, तभी मैं टीचर बनूंगा, नहीं तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बन के मैं टीचर नहीं बनता। अच्छा, you're focused more on healing people and bringing in abundance rather than sitting दिस and इज, teaching. मैं यहाँ आया हूँ वो किसी कॉस्मिक व्हील की वजह से आया हूँ, और मैं टीचर बनूंगा तो भी उसी की वजह से बनूंगा, तो उसका कोई प्लान नहीं अभी। लोग आते हैं, हम इंटरेक्शन करते हैं उनसे, उनको कुछ आनंद मिलता है, मुझे कुछ आनंद मिलता है, एंड वी बोथ आर हैप्पी। Super, super, super. I think this was an amazing, amazing conversation and so much of fun while just talking to you. And what I like the most, मैंने बोला ना, आप मेरे को लाफ्टर में टक्कर दे सके हो, ऐसे हो, इतनी अच्छी तरह से मुस्कुराते हो और हंसते हो. I'm always inspired by you with your smile that you've already taken laughter so seriously and you've already taken the smile, all goodness so seriously from the beginning. So जाने से पहले मुझे सिर्फ एक सवाल है. What is it that you want to convey to our viewers, to our people who are going to watch this now or sometime later, because we are going to put this video on Facebook? You want to convey any message to people? Yes, perfect. See, the way we are programmed to handle our discomforting emotion, or let us say anything painful related with our minds, हमको उसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वी अप्लाई डिस्ट्रैक्शन। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कहाँ से लाऊंगा? मैं मूवी देखने चला जाऊंगा, दोस्त के साथ घूमने चला जाऊंगा, वो। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्कम्फर्टिंग इमोशन इज अ पेन, एंड पेन मीन्स पे अटेंशन इनवर्ड नाउ. So it is time to go inside, not to run away from that. It is like, अगर मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल की एलईडी शुरू हो गई है, तो मैं इधर देख के गाड़ी चलाऊं. इट इज अ डिस्ट्रैक्शन. सो डोंट गिव योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, नहीं तो वो नासूर बन जाएगा, एक दिन इतना बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो एक पोस्टमैन है. दैट पेन इज अ पोस्टमैन, जो आपको कुछ डिलीवर करने आया है. आपको वो कवर खोलना है, पढ़ना है, उसको डिकोड करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है, ना कि अपने कान बंद कर देने को. वो डोरबेल बजा रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं रॉक सॉन्ग सुनूंगा हेडफोन लगा के. सो नेवर Or अप्लाई popping pills डिस्ट्रैक्शन. or just taking medicines हाँ and saying, हाँ. सी मेडिसिन्स आर मेजरली ऑल्सो, वो अब मेडिसिन के बारे में बोलना मतलब है ना, हैरी पॉटर में रह के वोल्डेमॉर्ट के बारे में बोलने जाता है. सो आई विल नॉट गो इनटू दैट. I understand. पर इवन एंटरटेनमेंट इज अ डिस्ट्रैक्शन, टूरिज्म इज अ डिस्ट्रैक्शन. लोग उस डिस्ट्रैक्शन के तरीके से यूज करते हैं, मतलब दे आर नॉट डिस्ट्रैक्शंस, हम उनको उस तरीके से यूज करते हैं. मेडिकेशंस, फिर एडिक्शंस, एंड इवन वो कौन सा ऐप आता है, वो डेटिंग ऐप जो है, टिंडर. Many are there. Ask me, I'll give you a list. So Tinder वगैरह, those are dangerous distractions. Even I have seen people who are using spirituality as a distraction. Keep it So simple. so किसी भी चीज को एज अ डिस्ट्रैक्शन अपने आप से दूर भागने के लिए मत यूज कीजिए, वो जहर ही है. अगर आप अपने आप के नजदीक आने के लिए आप जो भी यूज कर रहे हैं, वो सब थेरेपी है. फिर वो जो बाबा जो बैठे हैं, भोले बाबा जलम पीते हैं, वो अपने पास आने के लिए पीते हैं, तो वो भी उनके लिए थेरेपी है. और अगर मैं मंदिर जाके कीर्तन करता हूँ कि मैं मेरे विचारों से मुक्त हो जाऊं, मैं भागूं उनसे, तो वो थेरेपी Not नहीं है, फिर possible. वो Not जहर है. possible. दैट इज व्हाट आई Nice. बिलीव. Nice. सो Fantastic. don't ignore, don't apply distractions. Face your fears, face your discomforts. और उनके नीचे ट्रेजर छुपा होता है. Every pain you heal is a wisdom. So every pain is unhealed wisdom, and every wisdom is healed pain. So कोई वाइज आदमी वाइज तभी बन सकता है जब उसने बहुत सारे पेन हील किए होंगे. Beautiful. But that brings me to one quick question. Though we were Yeah. winding up, it just struck me when you talk about pain, when you're talking about all these physical things. Have you seen cases where we are talking about major health issues, like it could be cancer, it could be like kidney failure or something very very crazy stuff in the medical terminology? Have you ever tried hypnotherapy or all of these which has helped to heal? pre
प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी हिप्नोसिस आता है, Okay. जिससे आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है Okay. कि नहीं? इट इज, सी माइंड इज अ गवर्नर ऑफ अ फिजिकल बॉडी। आपका माइंड जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका हीलिंग उतना ज्यादा अच्छे से होगा। अदरवाइज मेंटल क्योस जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी को और ज्यादा बीमार करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो always actually physical body is reflection of mind. Great. I तो think माइंड पे काम करना अभी करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, चाहे मानो ना मानो, कोई फर्क ही नहीं, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और माइंड आपको छोड़ने नहीं वाला है अभी। absolutely. अब वो बोल रहा है इनफ इज इनफ, अभी बहुत हो गया। आपको मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमारा बॉडी जो है ना वो एप में से इवॉल्व होके ह्यूमन बॉडी बन गया है। अब माइंड बोल रहा है कि अभी मैं एनिमलिस्टिक में से अब मुझे ह्यूमन बनना है। और इसीलिए इतने सारे लोग थेरेपिस्ट ले रहे हैं, इतने सारे लोग योगा की तरफ जा रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज नाउ दिस इज अ ट्रांजिशन टाइम। दिस इज द एरा जब इंसान का माइंड जो है वो ह्यूमन माइंड का बनने जा रहा है। अभी तक तो हमारे माइंड जो है वो एनिमलिस्टिक ही थे। वो तो पुलिस है, कैमरे लगे, तो इसलिए हम ऐसे अच्छे बिहेव करते, जब कोई नहीं देखता तब हमारे माइंड के अंदर का एनिमल बाहर आता। अब उसको, अब नाउ इट इज टाइम कि वो ह्यूमन बनेगा। So that is why universe is picking up lot of people as a therapist, और बहुत सारे लोगों को भी थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। Absolutely. Great. Fantastic. Thank you so much for your insight, and thank you so My much for pleasure, my sharing. pleasure, my And for pleasure. all of you who are watching this, I'm going to share the link and few details about Swadarshana and Manish with his contact and other stuff. You're okay if I share certain details so that people can reach out to you, Manish? Yeah, of Just an course, email of ID course. and all of that. Okay, I'm No going to problem. post that. You can share my phone number also, I don't mind. Okay, before we go, I want to share to all the viewers. Sometime back, I was saying that I know it much better, that how I felt so comfortable meeting Manish. So I want to share this. Many of you have known me as a wellness and a therapist who is into laughter yoga, Reiki, and all of that. I've been using a lot of modality. But there was one issue in my life which was showing up again and again. Now I'm not opening up with what was this issue, but just few months back, before this pandemic, I think last year during September, October, when I was in Ahmedabad, I could go through the same issue again and again, which was showing up as a pattern for last 15 years. And that is when I realized that this is not normal. This is something where I need to find out a solution. And that's how I got in touch with Manish, and I made an appointment and went and met him. And trust me, the kind of comfort level that I had, number one, the trust, number two, the comfort level, the place, and the way he talks in the most simplest of form. वो डराते नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन से कहते अभी तो तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हैं. So that's the reason I have this conviction that this man has the ability to reach out to the root and the core of the problems. So I would highly recommend all of you who are watching this, if you have any major issues or challenges or concern in your life, particularly pattern, where you see that it has been continuing for the last 10-15 years, don't hesitate to reach this wonderful man. Thank you so much, Manish. Oh, thank you. And I'm Thank super you. happy. Thank you. Bye. Thank Bye, you. guys. Bye everyone, take care, God bless. Yes. Ho ho ha ha ha. Thank you, guys. I hope this entire discussion and what he shared would be of some insight and helpful to you. And you guys can definitely reach out. I'm going to give certain details here, and I'm looking forward to connect with all of you. And in coming weeks, I will be bringing in such wonderful people, and we will be having conversation. I am looking forward to bring in somebody who talks about color therapy. How can you use colors, simple colors that can help you to overcome certain small situations in your life? I am going to talk about switch words. I'm also going to invite a wonderful doctor, who, rather a surgeon, a cancer surgeon from Apollo Hospital here in Mumbai, who is going to talk about that and share certain insights. I would request you guys to share
few things from your side. What is it that you're looking for? Laughter is something which I always love, and I've been spreading the joy and laughter. But I want to add more knowledge to you guys, share more topics, and get more people. So if you think you want certain information on something other than these topics, do comment on the topics, and I'll be more than happy to get you guys speakers or people who are knowledgeable, people who are aware of these topics, and have a conversation like this. And before we go, can I know how was the session? If you guys are watching me, if you are still live here with me, how was the session for you? Was it informative? Just a hi, hello message so that I know that yes, you guys enjoyed this. I can see Milisha, Ramya Saramnan, Chinmay Vardarajan, Jose. I hope you all enjoyed this entire session. And if I have missed out any messages during the chat, I'm so sorry. We did this live for the first time, and since the conversation was so intense, there might be a possibility that I would have missed out one or two messages here and there. If that's the case, I will have a look at it and respond to you guys. So, as usual, before we wind up this session, let us end this session with a beautiful message that life is beautiful. And we have taken life so seriously with so much of worry and tension. It's time to take laughter seriously. It's time to take all these beautiful alternate therapies which help us so beautifully to take it seriously. So, let's just laugh before we end. Here we go. I wish each one of you a beautiful, beautiful life ahead. Take care. Bye bye.